Students, in previous hello, how are you? In previous class, we have discussed about the congruency. We have discussed the introduction of congruency. Sorry, रुक जाओ यार. We have discussed the introduction of congruency. In today class, we are going to discuss the we already discussed the what SSS congruency, we have discussed the SAS congruency, we have discussed the ASA congruency. Now and RHS is left out. In today class we are going to start new exercise, that is students exercise 7.2. 7.1 has already been discussed. In 7.2 the first question is which congruency creation which congruency criterion do you use in the following. अब आपको बताना है इन कॉलम्स में कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी यूज होते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट. नाउ व्हाट इज गिवन? AC is given DF. What is given? AC given DF, AB given DE and BC given EF. तो उसने पूछा है इन दिस ABC congruent है DEF के. अब three sides of a triangle is equal to another three sides of a triangle. So yes, they are congruent. They are congruent by SSS criterion. By SSS criterion. So this is a by SSS of congruency. The B part. In B part what is given? In B part two sides and an angle. Two sides and an angle. B part एक्सप्लेन कर देता हूं. दिस इज द डायग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. P Q R Z X Y. Now in this what is given? ZX is given equal to RP and RQ is given equal to ZY and PRQ given to XZY. These three things are given. So by which rule? Side angle side, side angle side. By SAS of congruency. By SAS. I already told you SAS में क्या आएगा? दो साइड से तो बीच में इंक्लूडेड एंगल. तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. दिस इज बाय SAS. सी पार्ट स्टूडेंट्स. सी पार्ट्स में क्या गिवन है? This is a diagram L N M and this is a diagram H F G. Now MLN this angle MLN is equal to FGH, this one, and NML, this angle is equal to GHF, this one, and ML equal FG.
ml इक्वल fg, this equal to this. So now this angle is equal to this angle is equal to this angle, and this side is equal to this side. So by which congruency? Angle side angle, angle side angle, ASA by ASA by ASA criterion of congruency, by ASA criterion of congruency. The next one is what? D part. The next one is what? D part. You have given, now we are talking about RHS. We have given a diagram, this one, and here is this one. In this, what is given? This is equal to this one, this is right angle, and this side is equal to this side. So by which congruency? Students, now try to understand the RHS. What is RHS? Right angle, ये right angle इस right angle के equal है, ये राइट एंगल इस राइट एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है. तो हमारे पास क्या हुआ? 3 पार्ट्स इक्वल हो गए दूसरे 3 पार्ट्स से. तो कौन से हुए? बाय RHS by RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड. राइट एंगल हो गया फर्स्ट, राइट एंगल के सामने वाली साइड, और एक हाइपोटेन्यूज. राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज. तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड. तो ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए? RHS से. कौन से रूल से हो गए? कौन से रूल से हो गए? RHS. तो पहले में हमने कौन सा लिया? SSS, सेकंड में SAS, थर्ड में ASA, और फोर्थ में RHS. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड. You want to show that art is equal to pen. You want to show that art is equal to pen. If you have to use SSS criterion, then you need to. अब हमें क्या करना है? आर्ट को पेन के इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. दिस इज आर्ट, ART, and this is pen. So in this what we have to do? Triangle, art, congruent to triangle, PN हमें दिया हुआ है. अब अगर हमें इसे SS से प्रूव करना है तो AR के इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? PE. यहां से भी मैच कर लो. मैंने बार बार कहा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंशन देयर कोरस्पॉन्डिंग नेम केयरफुली. यू हैव टू राइट डाउन द नेम केयरफुली इन ए कोरस्पॉन्डिंग वे. तो AR किसके इक्वल है? AR के इक्वल क्या है? PE. यस, AR के इक्वल क्या है? PE. और RT के इक्वल क्या है?
आर टी के इक्वल है ई एन, आर टी और आर टी के इक्वल क्या है ई एन, आर टी और ई एन। थर्ड वन क्या है एटी, थर्ड वन क्या है एटी और एटी के इक्वल क्या है पीएन, एटी के इक्वल क्या है पीएन। तो दिस इज अ ट्राइंगल आर्ट इज इक्वल टू पेन, आर्ट congruent to pen by SSS. If it is given that T angle T is equal to N and can you say that SAS, अब अगर आपको ये SAS की प्रूफ करना है, comes to B part, sorry, given क्या है एंगल T इज इक्वल टू एंगल N और हमें कौन सा रूल फॉलो करना है SAS, कौन सा रूल लेना है SAS। तो स्टूडेंट जब हमारा एंगल T इक्वल N के हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो गई दो, दिस वन एंड दिस वन। SAS रूल लेना तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो कौन सी साइड RT के इक्वल कौन सा होगा EN, RT के इक्वल कौन सा होगा EN और PN, स्टूडेंट PN के इक्वल क्या आएगा PN, PN के इक्वल आएगा 80, PN के इक्वल क्या आएगा 80। तो दिस इज बाय SAS। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर SSS है तो AR इक्वल PE, RT इक्वल EN और AT इक्वल PN। और अगर हम किसके थ्रू कर रहे हैं SAS में तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो RT इक्वल EN और PN इक्वल AT, RT इक्वल PN और PN इक्वल AT। तो दिस इज बाय SAS, दिस इज बाय SAS। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या दिया हुआ सी पार्ट में, सी पार्ट में दिया हुआ है RT इक्वल EN गिवन है और हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, हमें रूल फॉलो करना है स्टूडेंट्स कौन सा ASA, कौन सा फॉलो करना है ASA। तो कौन सी साइड्स इंक्लूड होंगी, दो साइड्स तो हमें गिवन है, हमें RT, तो हमारे पास कौन से दो एंगल्स इक्वल आएंगे स्टूडेंट्स, कौन से दो एंगल्स, यस अगर RT इक्वल AN है तो हमें कौन सा रूल लेना है ASA, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो क्या होगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, एंगल R इज इक्वल टू एंगल T, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। तो दिस इज बाय ASA, दिस इज बाय ASA। स्टूडेंट कोई डाउट यहां तक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नो, ओके यू कैन नोट इट डाउन। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is for your homework. Okay, I am doing that. I am doing that. Don't bother about. I am doing that. Question number third. Question number third is that we have given a diagram. This is a diagram. In this diagram, what you have to done? A, P, now students, most easy parts. Now in this is diagram is given, you have, this is the given for your question, you have to tell the reason.
PM इज इक्वल टू एम क्यू, PM इज इक्वल टू क्यू एम। वाई? जब स्टूडेंट ये सिंबल दिए हो तो इन सिंबल का मीनिंग क्या है कि दे आर गिवन, हमें ये गिवन है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट दे आर इक्वल, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं PM इक्वल QM के है, और ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं AM क्या है कॉमन, और PMA इक्वल किसके QMA के। तो तीन चीजें हो गई ना, बस थ्री थिंग्स। PM इज इक्वल टू QM गिवन, दिस एंगल PMA इज इक्वल टू QMA and AM given। तो this therefore this triangle congruent to this, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय विच रूल? SAS। बाय विच रूल? SAS। अब नेक्स्ट बन गया था हमारा रेट कॉन्ग्रुएंट टू वॉन, रेट कॉन्ग्रुएंट टू वॉन। तो रेट कॉन्ग्रुएंट टू वॉन कैसे करोगे आप? हमें रेट दिया हुआ है RAT, रेट RAT रेट। अब हमें इसे किसके कॉन्ग्रुएंट टू वॉन नहीं है, वॉन तो हमें निकालना है। अब RAT है तो ये एंगल, ये सिंबल देखिए कहां से मैच हो रहा है इससे, यस W। फिर उसके बाद किसका जा रहा है हमारा RA, तो ये क्या जाएगा WO, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। सिंबल पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो ये सिंबल बना हुआ है, यस दिस इज इक्वल टू दिस, WO। ऑर्डर देखना है RA, कौन सा ऑर्डर लेना है RA, और ये क्या आएगा WO, क्या आएगा WO। देन RAT, अब हमने क्या प्रूव किया WON, तो दिस एंगल। तो कौन सा रूल लग गया स्टूडेंट्स? एंगल साइड एंगल, RAT एंगल साइड एंगल। और हम इसे इससे भी प्रूव कर सकते हैं RA इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो दो रूल्स हैं जिससे रेट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वॉन की, रेट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वॉन की। सिमिलरली 6th क्वेश्चन में आ जाइए BCA के कॉन्ग्रुएंसी में क्या आएगा स्टूडेंट्स? BCA के कॉन्ग्रुएंसी में क्या आएगा स्टूडेंट्स? BCA तो क्या आएगा BTA, BC तो ये सिंबल किससे मैच हो रहा है इससे, तो BC इक्वल BT के, तो BC इक्वल BT के, और BA इक्वल BCA तो BTA। बाय विच रूल? साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो बाय विच रूल? SAS। सिमिलरली स्टूडेंट्स QRS, तो QR किसके कोरस्पोंडिंग जा रहा है QPT, सॉरी QRS, ये सिंबल किससे मैच हो रहा है इससे। तो नेमिंग क्या होगी? Q के इक्वल क्या आएगा R, Q के कोरस्पोंडिंग क्या होगा R, तो Q के कोरस्पोंडिंग हो गया T, R नहीं, Q के कोरस्पोंडिंग क्या हो गया T, तो QT, तो Q से मैच होगा T, Q से क्या मैच होगा T। और नेक्स्ट R, ये साइड ऑफ P, तो ये हो गया P, QRS, तो ये क्या होगा TPQ, बाय किससे TPQ। तो therefore these two triangles are congruent, by which rule? Yes, by which rule? By which rule they are congruent? Angle side angle, angle side angle। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अभी छोड़ देना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।